एक जाना माना चेहरा है जिनकी पेंटिंग के हर वर्ग के दीवाने हैं। दक्षिणी दिल्ली के साकेत स्थित शेरेटन होटल में उनकी बनाई चित्रकला की प्रदर्शनी 26 फरवरी से लगी हुई है, जिसे सभी वर्ग के लोग सराह रहे हैं। Okay, so the title of this painting is Colorful Life, and what I have tried to denote, as you can see, I have tried to make it as colorful as possible. What it means is, one has to fill colors in their life. Otherwise, without colors, the life becomes very boring. So just fill your life with colors. Find reasons for happiness. There are enough reasons to be sad. You have to make an effort to find reasons to be cheerful, to be happy. So this is what I have tried to denote in this colorful piece. Coming here. So this style is called Fauvism, wherein only one color is used in the entire painting. So it's all different shades of grey, from light till the darkest, and I call it blushing beauty. Just a tinge of red in the lips. This is the portrait of a famous model, Ms. Harita Sahu. And as you can see, again this is also a kind of Fauvism wherein I have just used blue and black. So I don't make realistic portraits, I make figurative abstract portraits, because that is something which really appeals to people. I feel that a painting should look like a painting. If it looks like a photograph, nobody wants to put it. हाथ आ रहा तो ये वाली इधर इसमें करो तो ये स्टाइल कहलाता है क्यूबिज्म. Cubism was made popular by the likes of Picasso, Barak. This is a jazz night. It is, so there's a couple which is doing jazz and there's an entire orchestra around it. इसमें आप देखेंगे कि हर बैकग्राउंड इस थोड़ा सा डिफरेंट है. Again, a very bright painting would look very beautiful on a wall. I call it jazz night. This painting is called Seduction. This is again Fauvism, only different shades of blue in the entire painting. And this is one of my favorites. I really like this painting. And it's all about, so when I say seduction, I don't mean it in a very, derogatory way. It just means that, you can seduce just with your eyes. बहुत ज़्यादा भाई ज़्यादा लंबे है ना, इनका हाथ फिर वैसे आ रहा है. The eyes of this lady just speaks to you. And so this painting is called Attitude. And this particular piece won the first prize in the figurative category in a Camlin-sponsored event in Mumbai yesterday. So it was an event where 3 very prominent artists were the jury, and this was selected as for the first prize. इस पेंटिंग में जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, you can see some very affluent women, from their clothes, from their surroundings, rich, stylish women, all together, but still, अगर आप ध्यान से देखें तो इनकी eyes are quite lonely. So there is a lot of sadness in the eyes. तो एक जिसको हम पुरानी वो कहते हैं कि भीड़ में तना, तो ये चीज़ दिखाने की इसमें कोशिश करी गई है. So they are all together. They are not speaking to each other. Everybody is showing their own attitude. That is why I call this painting Attitude. And the eyes, and each of them are lonely from inside. So this is what this painting is all about. Lastly, this painting is called Nasha. इसमें ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि कितने तरह के नशे होते हैं. So हो सकता है ये these two girls have a nasha for the boy, or the boy has a nasha for these two girls. फिर जो अलग अलग तरह के नशा होते हैं, एक पॉजिटिव नशा है which is music, which is a positive नशा, but उसका भी म्यूजिक भी जब चढ़ता है तो सर चढ़ के बोलता है. शराब है, गैम्बलिंग है, some violence है which shows kind of दादागिरी. ये सब चीज़ों के नशे हैं. ये एक बार लग जाए तो बड़ी मुश्किल से प्यार का नशा.
प्यार के नशे से बढ़ के कुछ कोई है. नशा है कि नहीं. So this is what we have tried to denote in this. I need a few minutes to explain a bit of the other books. Yeah, and Let me introduce myself. I am Vikram Sethi. I am the art curator and organizer of this event. I am very lucky to have lovely artist like Piyush with me in this show. Along with Piyush, there are 9 other artists who are displayed here. So you can see all their works. We can take a video of all the works to that table there. And they are beautiful works expressing colors of love, which give a good positive energy and vibe to the industry now. We've all been through COVID times, off and on. So it's wonderful to have all these artists together to make a colorful melange of colors and complement each other's works. So I would like, I want to get Vikram Sethi here, art curator. I'd like you to all have a look at the other works also and take a shot of that, of all the other artists. And Piyush is today's showstopper. And once again, congrats to Piyush. He just won 2 awards yesterday. We were sitting together discussing it, and by pure chance, in March Shivratri, this lovely award came. The Jeweller's Choice Award and also the Best Figurative Award. The works are also displayed here. So please enjoy the show and have a look at the other. we are very happy to have Mr. Vinay Chaudhary with us today, senior politician, entrepreneur, and my younger brother. पहली बार मैं इस तरह की पेंटिंग्स में यहाँ आया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पीयूष जी ने जिस तरीके से आर्ट को एक तरीके से उन्होंने सामने पेश किया और उसके अंदर इतने थॉट पे आपने जिस तरीके से आपने देखा होगा बताया अभी पीयूष जी ने कि जो पेंटिंग आप लोग देख रहे होंगे पहली बार तो आपने पेंटिंग देखी लेकिन आप समझ नहीं पाए कि एक्चुअल में ये क्या है, लेकिन जैसे ही उन्होंने बताया कि पेंटिंग के अंदर क्या क्या थॉट्स हैं तो जब आपने देखा कि इस पेंटिंग में लॉट ऑफ थॉट्स हैं, वो कितना गैम्बलिंग है, म्यूजिक है और किसके लिए पैशन है, ये सारी चीज़ें बड़ी बात होती है। मैं पीयूष जी को इस मंच के लिए और इस काम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि आपने बहुत अच्छा आर्ट आपने काम किया है और मैं बस यही कहूँगा कि आप ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। आज आपका यहाँ हुआ है और मुझे अभी पता चला कि आपको मुंबई में इस पेंटिंग के लिए एक अवार्ड भी मिला है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। Thank you, thank you, thank you. We cover the other Those are the paintings also. Thank you. आईडी से ले लो ये कब से कब तक लगेगी, क्या इसका फोकस, क्या थीम, क्या थीम? जी ये जो एग्जीबिशन है ये 26 फेब से चालू हुई थी, फरवरी से, और 3 मार्च तक है। और विक्रम सेठी बहुत मशहूर एंड इज़ अ वेरी फेमस क्यूरेटर हु हैज़ अरेंज्ड दिस शो। So there are about 8-9 artists. Among them is my paintings, and so इसका जो थीम, पूरी एग्जीबिशन का जो थीम है वो है लव ऑफ लाइफ, एंड उसको अलग अलग आर्टिस्ट ने अपने अपने तरीके से दिखाया है। तो मेरी पेंटिंग्स हैं खास तौर पे, अगर आप देखेंगे तो आई जनरली मेक हैप्पी पेंटिंग्स, कलर्स हो, इवन इफ आई एम यूजिंग अ सिंगल कलर आई वुड लाइक इट टू बी वेरी चेयरफुल। मेरा हमेशा एक ये सोचना है कि आर्ट वर्क वो अच्छा होता है जिसको कोई अपने घर की दीवार पे लगाना चाहे, जिसको कोई अपने घर में नहीं लगाना चाहे तो उस आर्ट की सिर्फ क्रिटिक्स वैल्यू रह जाती है। मेरी अपनी सोच है, मैं ऐसी चीज़ बनाता हूँ जो कि लोगों को अच्छा लगे, देख के उनके चेहरे पर एक स्माइल आए। ये जो आपने सब्जेक्ट चुने हैं, इनको चुनने की कोई खास वजह बता सकते हैं, इनको संदेश देना देखिए, चाहते हैं? ऐसे आर्टिस्ट की कोई वजह नहीं होती है। आप एक ही सब्जेक्ट में नहीं बनाते हैं, आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अलग अलग समय आप बनाते हैं। एज आई सेड कि मेरी ज़्यादातर पेंटिंग्स मैं खुशी दिखाने की कोशिश करता हूँ और उसमें मेरा जो एक मैसेज रहता है वो यही रहता है कि फिल योर लाइफ विथ हैप्पीनेस। हमारी आपकी सबकी ज़िंदगी में दुखी होने के बहुत वजहें होती हैं, खुश होने की कभी कभी मिलती है, उसको ढूंढना पड़ता है। तो जो हर छोटी चीज़ से खुशी मिले आपके आसपास, उसको पकड़ के रखना चाहिए। यही मेरी पेंटिंग का एक उद्देश्य भी रहता है कि जो भी देखे उसको देखकर अच्छा लगे, एक दिल में एक अच्छी भावना आए। किसी भी कलाकार की आइकॉन होता है, किसी कलाकार आर्ट में हो, फिजिकल में हो, ट्रेनिंग में हो, म्यूजिक में, कहीं भी हो, आप अपना आइकॉन किसको समझते हो? कब से अब ये सब पेंटिंग का है आपको? देखिए, मेरी इंस्पिरेशन फॉर पेंटिंग हैज़ बीन माय मदर। मेरी मदर MA फाइन आर्ट्स हैं
और अब तो बहुत सालों से उन्होंने नहीं करी, बट एक टाइम में वो बहुत पेंटिंग बनाती थी, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाती थी। मैंने उन्हीं से सीखा था, बहुत साल तक मैंने पेंटिंग करी उनके साथ में। फिर जैसे होता है कि कुछ अपने बिजनेस जमाने में व्यस्त हो गए, और इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए कि पेंटिंग छूटी गई थी। तो करीबन 20 साल मैंने पेंटिंग नहीं करी। फिर अभी कुछ साल पहले से मैंने वापस उसको करना शुरू करा, और लोगों को बहुत पसंद आने लगी। लोग ने खरीदना शुरू कर दिया, लोगों ने, क्रिटिक्स ने बहुत पसंद करी। कुछ एग्जीबिशन वाले लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई ढूंढता हुआ मुझे आए कि हम आपकी पेंटिंग यहाँ दिखाना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि काम लोगों को पसंद आ रहा है, तो इस पर और मेहनत करी जाए। तो मैंने और मेहनत करना शुरू करी, और अब आज की तारीख में मैं जैसी बना रहा हूँ वो आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं।